Hello students, how are you all? Hope you all are good. Today I Abhishek Tripathi going to teach you chapter first of class 10th maths, that is real number. In our previous video we have already discussed the examples of Euclid division lemma and Euclid division algorithm. I have already told you the difference between algorithm and lemma. Lemma is a already proven statement which is being used for proving another statement, and algorithm is a well defined set of steps कि हमको कैसे कौन सा काम करना है. Today we are going to discuss about the exercise 1.1 of your textbook. Exercise 1.1. In exercise 1.1 you will get the similar type of questions as I have told you in examples. So the very first question of your textbook, that is, find the HCF of given numbers by using Euclid division lemma. Find the HCF of given numbers by using Euclid division lemma. So I am taking the very first example, that is 135 and 225. We have to find the HCF of given numbers. Now, I have already told you, first you have to find the greatest number among the given numbers. So, in these two numbers, 225 is the greatest number. So, step 1, you will divide 225 by 135. आप क्या करोगे, 225 को डिवाइड करोगे 135 से. करते हैं डिवीजन. ऐसा हम इसको इसके पार्टीशन बना लेते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं. सो 135 से हम डिवाइड करेंगे 225 को. 135 टू जा कितना हो जाएगा 270, दैट इज़ मोर देन 225. सो इट विल बी ओनली वन टाइम. 135 minus 5 minus 5 0, 2 minus 3 not possible. So 12 minus 3, that is 91 minus 1, that is 0. So if I want to write this in the format of Euclid division lemma, so what I will write, 225 is your real number. You have divided by 135, that is A. You got the quotient 1, that is Q, and the remainder 90. रिमाइंडर 90 नहीं बचा, रिमाइंडर 0 नहीं आया है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल अगेन डिवाइड द गिवन नंबर्स. बट हाउ वी विल डिवाइड, वी विल हैव द डिविजर एज द डिविजर ऑफ फर्स्ट स्टेप एज द डिविडेंड एंड रिमाइंडर ऑफ द सेकेंड फर्स्ट स्टेप एज अ डिवाइजर. सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड 135 विथ व्हाट 90. 135 by 90. So let's take a look on division. 135, 9 2 ja 180, 92 ja 180. So it is also going one time. So 90 minus 5 minus 0, that is 5. 13 minus 9, how much, 4. 13 minus 9, that is 4. So again I will write this as Euclid division lemma statement, that is 135 is the real number and I have divided 135 by 90, that is A. Remainder quotient as 1 and remainder as 45. Still I have not got the remainder 0, so I will divide again by following the steps as I have told you earlier, that divisor of first second step, your previous step, divisor of previous step will become the dividend and remainder of previous step will become quotient, divisor. So what I will do, I will divide 90 with 45. करते हैं डिवीजन. 45 will divide 90, 45 to the 90 minus 0. So we got the remainder and I will write this as the Euclid division statement, that is 90 is equals to 45, that is divisor, quotient that is 2 and remainder that is 0. So now you have to find the HCF of 135 and 225. So in these three steps we have got the HCF, and what is the HCF of these two numbers? So
HCF of given numbers is always the divisor of very last step that makes the remainder 0. तो सबसे लास्ट में क्या मिला है आपको 45. 45 is the divisor. By dividing 45 you got the remainder 0. So this will be your HCF. So what I will do, HCF of 135 and 225 is what? 45. This is how you have to solve the remaining two questions which you have which is on your textbook. Next question is, so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 when q is some integer. चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम. बहुत आसान है और आसानी से समझ में भी आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. अब एक चीज़ समझिए, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू हैव टू क्लियर वन सिंपल कॉन्सेप्ट दैट अगर आप एक चीज़ बताओ, अगर आप किसी इवन नंबर को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो उसमें रिमाइंडर कभी भी 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा. ये बात समझते हो? अगर आप किसी इवन नंबर को डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर कभी भी 2, 4, 6 नहीं आता है. ऑड नंबर को डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 2, 4, 6 आ सकता है. ठीक है. अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हम मान लेते हैं कि लेट the positive odd integer is what? x मान लेते हैं इसको. क्या मान लेते हैं? x. now integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. अब एक चीज़ समझिए कि पॉजिटिव ऑड है. क्या है? ऑड. ऑड में रिमाइंडर क्या क्या मिल सकता है? व्हाट यू कैन गेट एज अ रिमाइंडर? आइदर 1, 3 और 5. समझिएगा कैसे हम बात करते हैं. एग्जांपल से लेते हैं इसको, हम रियल लाइफ एग्जांपल. नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं और उस नंबर से हम बात करते हैं. फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग 6. 6 इज व्हाट? 6 इज एन इवन नंबर. और आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ही आपका सोल्यूशन है. तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो नंबर है तो 6q होगा, 6q प्लस 1 होगा, या फिर 6q प्लस 3 होगा, या फिर 6q प्लस 5 होगा. यही 3 हो सकते हैं. ऐसा कौन बोल रहा है? क्वेश्चन ही बोल रहा है. अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, सो दिस इज व्हाट रिटन इन द फॉर्म ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा. ये किस फॉर्मेट में लिखा है? यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर्मेट में. अब यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर्मेट क्या कहता था? ऐसा कुछ था कि एनी नंबर बी, एनी रियल नंबर बी विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है? 6. ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 6. गिव्स यू द कोशेंट q एंड रिमाइंडर 1, रिमाइंडर r. तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है? 1. यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 6. रिमाइंडर कितना है? 3. यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 6 एंड रिमाइंडर कितना है? 5. ये बिल्कुल यूक्लिड डिवीजन की तरह ही लिखा हुआ है. अब हम इसको समझते हैं कि अब हमको ये समझ में आ गया कि b विल डिवाइड द गिवन पॉजिटिव इंटीजर बाय 6. कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर लोगे तो उसको किससे डिवाइड करना है? 6 से. क्यों? क्योंकि a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6. क्वेश्चन में ही पता चल रहा है. तो अब हम करते हैं क्वेश्चन. हमने एक नंबर लिया 6, एक नंबर लिया 7. दिस इज द इंटीजर प्लस कौन सा इंटीजर? इवन इंटीजर. 7 क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर. ठीक है. हम डिवाइड करते हैं. 6 को जब हम 6 से ही डिवाइड करेंगे. 6 से क्यों कर रहे हैं? यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज द क्वेश्चन स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ a इज 6. सो यू मस्ट डिवाइड विथ 6. आप 6 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं करोगे. अब यहाँ पे 7 पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 6 पॉजिटिव इवन इंटीजर है. चलिए देखते हैं. 6 को जब आप डिवाइड करोगे 6 1 जा 6 माइनस वी गॉट द रिमाइंडर 0. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड 7. 6 से डिवाइड किया, 6 1 जा 6 माइनस आई गॉट द रिमाइंडर 1. सो व्हेन यू आर डिवाइडिंग द given integer, positive odd integer, you are getting the remainder 1. So this statement proved.
अगर आप पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, रिमाइंडर 3 और 2 कैसे आएगा। तो अगर मान लो कि 8 है, दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर, क्या है ये पॉजिटिव इंटीजर है, और ये ले लिया हमने 9, दिस इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड दिस इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इसको डिवाइड किया, 6 1 जा 6 माइनस रिमाइंडर कितना आया 2। इसको डिवाइड किया, 6 1 जा 6 रिमाइंडर कितना आया 3। सो व्हेन यू आर डिवाइडिंग द पॉजिटिव इवन इंटीजर यू आर गेटिंग द इवन रिमाइंडर, and when you are dividing the positive odd integer you are getting positive या odd integer odd remainder। समझ में आ रही बात कि जब आपने पॉजिटिव इवन नंबर को डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, इवन इंटीजर मिला 6 से डिवाइड करने पे, ठीक है। आपने 9 को डिवाइड किया, 9 क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो आपको कितना मिला 3। तो दिस स्टेटमेंट हैव बीन प्रूवन, ओके। अब बात करते हैं इसकी 6 + 5 की। तो देखें 5 that is 10 ले लेते हैं and 11। If I divide 10 by 6 I will get 6 1 जा 6 minus remainder as 4। When I will divide this I will get remainder 5। तो इन 3 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया हो कि अगर आप पॉजिटिव इवन इंटीजर को 6 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द रिमाइंडर 0 2 और 4। When you are dividing positive odd integer with 6 by 6 you are getting the remainder 1 3 and 5। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, any positive integer is of the form of 6 + 1 6 + 3 and 6 + 5। तो in this way you can tell them, ओके। तो इसको लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन देखिए इसका, ये तो आपको समझने के लिए हो गया कि कैसे इसमें होता है, ठीक है। any positive integer when divided by 6 will give remainder 0 1 2 3 4 and 5। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप डिवाइड करोगे 6 से तो आपको रिमाइंडर क्या मिलने वाला है 0 1 2 3 4 and 5। इससे अलावा आपको कोई रिमाइंडर नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो अब एक बात समझिए, अगर कोई नंबर इवन होगा, ध्यान समझिएगा, इफ एनी नंबर इज एन इवन नंबर then it is very obvious that you will never get the remainder of multiple of 2। you will never get the remainder multiple of 2। multiple of 2 नहीं मिलेगा, कभी भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा अगर वो इवन है, ठीक है। चलिए देखिए क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फाइनली 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इवन नंबर फाइनली किससे हो जाता है, डिवाइड 2 से। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक नंबर था b, हमने जिसको x माना था, तो x हम लिख लेते हैं, x = 6q + 0 पहला केस, x = 6q + 1 दूसरा केस, x = 6q + 2 तीसरा केस, x = 6q + 3, x = 6q + 4, x = 6q + 5। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन में कौन सा इंटीजर है, ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर में रिमाइंडर हमको क्या मिलता है, नेगेटिव इवन इंटीजर में क्या मिलता है। तो दिस इज़ द इवन नंबर, ये क्या हो जाएगा आपका इवन नंबर हो जाएगा, ये इवन हो गया, ये इवन हो गया। अच्छा इवन समझ रहे हो, अगर रिमाइंडर मान लो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है, तो मल्टीपल ऑफ 2 आने का मतलब ये कि वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इवन हो जाएगा। 1 3 5 7 9 11 ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए उसको हम ऑड कंसीडर करेंगे। तो ये भी आपका क्या हो गया, इवन। तो इवन जब ये 3 हो गए तो जो बचा वो क्या हो गया, ऑड। सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 and 6q + 5।
ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इवन नंबर का जो डिवाइजर होता है, जो रिमाइंडर होता है, वो 2, 4, 6 नहीं हो सकता। रिमाइंडर समझ में आ रहा है? क्यों नहीं हो सकता 2, 4, 6? क्योंकि वो अगर 2, 4, 6 है तो उसका वो डिवाइड होकर के फाइनली 0 हो जाएगा। तो अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज द हाउ यू कैन राइट दिस, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इवन नंबर्स कैन नॉट हैव द रिमाइंडर एज द मल्टीपल ऑफ 2, 4, 6 एंड मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो अब आपके पास जो बचता है वो कौन बचता है? 1, 3 एंड 5 मीन्स ऑल द रिमाइंडर्स इज इन द फॉर्म ऑफ odd numbers. So any positive integer can only any positive odd integer can only be written in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. Okay, now moving to the next question. वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर सॉल्यूशन लिख लिया करिए। The next question of your textbook is, any army contingent of 616 members is to march behind any army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? So this question is saying we have total how many army persons? 6. I got that marker is leaked. 616. These are the total number of soldiers. Now you have to make the columns of these soldiers, and you have to 32 members in a parade. 32 members in a parade. Total numbers of this you need in a single parade, that is 32 members. Now you have to find that if you make the columns, then how many soldiers will be in the सिंगल कॉलम, मतलब इस कॉलम में कितने लोग खड़े होंगे, कितने आर्मी के परेड जवान इसमें खड़े होंगे। तो ये बात हमको पता करनी है। सो टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ a person, thing, objects in a single row, you require to find the HCF. So the HCF method, for finding the HCF we use Euclid division lemma. So let's find the HCF. Question number third. Total number of 616. Total number of army is equals to 616. Now, and band of each parade, कितने लोग हैं उसमें? 32 members we have, 32 members. Now what you have to do is you have to find the HCF of given these two numbers. So बहुत बार बता चुका हूँ आपको कि you have to find the greatest number, then you have to divide the greatest number by smallest number. So the greatest number is 616 and you will divide this by 32. Let's divide this. 616 divided by 32. 32 1 जा 32, माइनस किया 11 minus 2 that is 9, 5 minus 3 that is 2, 6, 296. नाउ 32 की टेबल पढ़ेंगे हम 296 के आसपास तक पहुंचने के लिए। तो 32 10 जा होगा कितना? 320 एंड 39 जा होगा 270। तो अप्रॉक्स कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स। कैसे अपन ने गेस कैसे किया ये कि अगर आप 32 into 10 करते हो तो यू विल गेट 320. What you will get? You will get 320. And if you will multiply 30 by 9, you will get what? 270. तो मतलब 9 जा में कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, और 10 जा में बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो इट इज़ ऑब्वियस कि 9 जा ही होगा अप्रॉक्स। एक गेस किया जाता है बच्चों, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं होता है, पर एक गेस करने के लिए। तो 9 2 जा
18, 9 3 जा 27 + 1 28। ओके, सही किया है ना मैंने। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 + 1 28। सब्ट्रैक्ट दिस, 6 - 8 होगा नहीं, 16 - 8 दैट इज 8, 8 - 8 दैट इज 0, 2 - 2 दैट इज 0। सो व्हाट यू गॉट इज 616 is equals to 32 was your divisor and 19 is your quotient and the remainder is 8. This is written in the format of Euclid division lemma statement. Now this was your first step. So what I have told you, the remainder of first step will become the divisor of next step and the divisor of first step will become the dividend of next step. तो अब हमारा स्टेप 2 क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। स्टेप सेकेंड, योर डिविडेंड इज 32 एंड डिवाइडर इज 8। डिवाइड करेंगे तो पता नहीं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं, यू ऑल नो व्हाट विल कम। सो 32 इज इक्वल्स टू 8 × 4, 8 4 जा 32 + 0। सो you got the remainder 0 and when you get the remainder as 0, so that steps divisor is said to be the HCF of the given number. So HCF of 32 and 616 is what? 8, and this is what the number of the answer of your question, that what is the maximum number of columns in which they can march. So the maximum number of column is what? 8. They can have 8 columns of army persons members. Okay, hope you understood. Now moving to the next question. The next question is using Euclid division lemma so that square of any positive integer is either 3m or 3m plus 1 for some integers m. चलिए देखते हैं ध्यान से, बहुत इजी है और बहुत आसानी से आ भी जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को भी करने के लिए हम थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे। रियल लाइफ मतलब वी विल सेलेक्ट सम नंबर्स एंड देन वी विल टॉक अबाउट द प्रोसेस। ओके, क्या कह रहा है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर 3m और 3m + 1। आपसे क्या कह रहा है कि जो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होगा वो या तो 3 होगा, 3m होगा, या फिर 3m + 1 होगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और साथ ही क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। एक ये क्या है? स्क्वायर में आ रहा है, स्क्वायर करने के बाद मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझिएगा फिर समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर m है, उसकी वैल्यू हमने ले ली कितनी? 2, और दूसरा हमने वैल्यू ले ली उसकी क्या? 3, और तीसरी हम वैल्यू ले लेते हैं क्या? 4। वी हैव टेकन 3 वैल्यूज। इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। एक बार हमने m की वैल्यू कितनी ले ली? 2। एक बार हमने m की वैल्यू कितनी ले ली? 3। एक बार हमने m की वैल्यू कितनी ले ली? 4। एग्जाम्पल समझिएगा कैसे होता है। अब ये यूक्लिड डिवीजन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स a, द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट? 3। a की वैल्यू कितनी है? 3। क्यों? क्योंकि हम a³ + 1 लिखते थे, a³ + 1। तो a की जगह लिखा हुआ है a की जगह लिखा हुआ है 3, m की जगह m एंड 1 इज योर रिमाइंडर। देखिए m का अब हमको क्या करना है? स्क्वायर ऑफ द इंटीजर। तो m का स्क्वायर करेंगे, m² दैट इज 2²। तो m की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 4। कितनी मिल गई? 4। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 27 नहीं, सॉरी, m की वैल्यू कितनी मिलेगी? 9। और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी मिल गई आपके लिए? आपका 4 4 जा 16। नाउ यू हैव टू डिवाइड द गिवन नंबर विथ 3। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे, सो व्हाट यू विल गेट? 3 1 जा 3 प्लस रिमाइंडर 1। इसको डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9 रिमाइंडर 0। इसको डिवाइड करोगे तो 3 4 5 जा 15 प्लस 1। इसके अलावा आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा, या तो 1 रिमाइंडर मिलेगा या तो 0। 2 क्यों नहीं मिल रहा है?
क्यों? अगर रिमाइंडर मान लीजिए 2 आता है, क्या आता है रिमाइंडर 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 में एक टाइम 3 का डिवाइड हो सकता है। सो आपको समझ में आया कि रिमाइंडर 1 आएगा या तो 0 आएगा। कब? व्हेन यू आर डिवाइडिंग द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर m। स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आप समझते हैं। मान लेते हैं हम, सो बिफोर मेकिंग द स्क्वायर ऑफ any integer m, let us take some more examples before moving to the square। हम बात करते हैं किसकी? अगर मान लीजिए कि कोई एक नंबर है x, क्या है नंबर x, x कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर है। इफ यू आर डिवाइडिंग दिस x by 3, if you are dividing this integer by 3, so what you will get as a remainder? You can get the remainder r, that is 0, 1 and 2। इससे ज़्यादा रिमाइंडर आपको मिलेगा क्या? मैंने आपको जब यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम का ब्रीफ बताया था, सो व्हाट आई टोल्ड यू दैट द रिमाइंडर कैन नेवर बी मोर देन द डिवाइजर। मोर देन नहीं हो सकता तो कितना हो सकता है? सो इट विल बी लेस देन 1 टू द डिवाइजर। तो रिमाइंडर कितना मिल सकता है? इतना। ओके नाउ अगर हम इसको यूक्लिड के फॉर्मेट में लिखें, सो कैसे लिखेंगे? x इक्वल्स टू 3, हमने मान लिया q डिवीजर था, 3q प्लस रिमाइंडर कितना मिला था? 0। फर्स्ट केस, दिस इज योर केस 1, दिस इज योर केस फर्स्ट, इतना रिमाइंडर मिलेगा। केस 2 की बात करेंगे, केस 2 में यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3q प्लस वॉट? रिमाइंडर 1। ठीक है, अभी हम स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल बात कर रहे हैं। केस थर्ड क्या मिलेगा आपको? x इक्वल्स टू 3q प्लस 2। दीज आर द 3 केसेस विच यू विल गेट आफ्टर डिवाइडिंग एनी इंटीजर x बाय 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में, इसमें चलते हैं हम क्वेश्चन में कि क्या होता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द क्वेश्चन इज सेइंग दिस, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर m, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर m। तो हम इस केस की बात करते हैं, द केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या हो रहा है? x इक्वल्स टू 3q, व्हाट आई एम गेटिंग एक्चुअली x इक्वल्स टू 3q। स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, एंड इधर कितना मिल जाएगा? 3q स्क्वायर, दैट इज 3 3 जा 9q स्क्वायर, इतना मिलेगा। कोई डाउट है आप सबको? x का स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर हुआ, तो इसका स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, एंड इसका स्क्वायर कितना मिल गया? 9q स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यू कैन राइट द 9q स्क्वायर एज 3 इंटू 3q स्क्वायर, लिख सकते हो आप इसको ऐसा। यू कैन राइट द 9q स्क्वायर एज 3 इंटू 3q स्क्वायर। सो आई कैन राइट दिस लाइक 3m। क्यों? m की वैल्यू कितनी है? m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। क्लियर मेरी बात? तो हमने एक केस में देखा कि 3m हमको मिल रहा है। एनी डाउट? केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड पे चलते हैं। क्या है आपका केस सेकेंड? x इक्वल्स टू 3q प्लस 1, x इक्वल्स टू वॉट? 3q प्लस 1, x इक्वल्स टू 3q प्लस 1, स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर डूइंग स्क्वायर? बिकॉज द क्वेश्चन सेज दिस, आफ्टर स्क्वायरिंग द इंटीजर m we will get as 3m और 3m plus 1, that is why we are squaring। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी। तो a स्क्वायर दैट इज 3q होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6q प्लस 1। ओके, नाउ द रिमाइंडर शुड बी 1। क्यों 1 होना चाहिए? यहाँ पे 1 आना ही चाहिए हमारा। तो देखें इसको, आई कैन टेक कॉमन 3 फ्रॉम दीज 2। अगर मैं इससे 3 कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा? 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1।
1 इज़ वॉट योर रिमाइंडर, इसको हम अभी छू भी नहीं रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। अब ये 3m प्लस 1 क्या हो गया, तो जो ये वैल्यू है ना आपकी जो दूसरी वाली, तो उसकी वैल्यू हमने मान ली कितनी m, 3q स्क्वायर इज प्लस 2q इज द वैल्यू ऑफ m। एनी डाउट? नाउ मूविंग टू द केस नंबर थर्ड। केस थर्ड किसकी बात करते हैं हम, केस थर्ड जो हमने यहाँ पे लिखा था। क्या है केस थर्ड, x इक्वल्स टू 3q प्लस 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 स्क्वायर। फॉर्मूला फिर से लगेगा, a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो 9q स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा 2, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 दैट इज 12q, 3 दूनी 6, 12q प्लस 4। नाउ 4, अगर आप देखो 4 को, तो इफ़ यू डिवाइड द 4 बाई 3 यू विल गेट द रिमाइंडर 1, मिलेगा रिमाइंडर 1। क्यों मिलेगा, क्योंकि 4 जो है वो 3 से 3 के टेबल में आता है, तो 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 दैट इज 1 रिमाइंडर मिलेगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। क्लियर है मेरी बात आप सबको? समझ में आया ना कि 3 प्लस 1 कैसे लिख दिया मैंने 4 को, क्योंकि अगर आप 4 को डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 1 आ गया रिमाइंडर। इसलिए मैंने इसको क्या किया, 4 को 3 एंड 1 के फॉर्मेट में लिख लिया। 3 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है 3 है आपकी a की वैल्यू। ठीक, चलिए समझते हैं आगे। इन तीनों से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ गया तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब मैं लिख दूंगा इसको 3m प्लस 1। m की वैल्यू कितनी मान ली मैंने, m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ m। तो अब इन तीन चीज़ों, इन तीनों केस को अगर आप देखोगे, तो यू आर आइदर गेटिंग 3m और गेटिंग 3m प्लस 1। So this is the solution of question number third of your textbook. Now the question number last question है question number 5। चलिए देखते हैं, और ये this was the solution of question number 4। हाँ चलिए देखते हैं आगे, और ध्यान समझिएगा, बहुत इजी चैप्टर। Using Euclid division lemma to show that cube of any positive integer is of the form 9m प्लस 1 9m प्लस 8। चलिए देखते हैं। अब इसमें भी क्या समझ में आ रहा है कि a की वैल्यू कितनी है 9 है, तो आपका 3 ही तरीके से लिखा जा सकता है। एक हो सकता है 9m, एक हो सकता है 9m प्लस 1, एक हो सकता है 9m प्लस 8। 3 तरीके हो सकते हैं। कब, जब क्यूब करोगे। कब, जब क्यूब करोगे। तो देखें ध्यान से, सॉल्यूशन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन। द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर कैन बी ओनली इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। चलिए ध्यान से देखते हैं। हमने मान लिया कि x इज द इंटीजर एंड नाउ यू आर डिवाइडिंग x विथ 9। क्या कर रहे हैं आप, x को 9 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें हम सारे केसेस को नहीं करेंगे, क्योंकि केस बहुत बड़े बड़े आ जाएंगे आपके पास, बहुत सारे केसेस आएंगे। हम सामान्य रूप से बात समझते हैं। x से अगर आप 9 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपकी r की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इतना ही रिमाइंडर आ सकता है। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 से एक कम ही रिमाइंडर आएगा, तो ये रिमाइंडर आ सकता है। अगर हम इसको इस तरीके से समझेंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। तो अगर आप इसका स्क्वायर कर दो, x का क्या करना है क्यूब नहीं करते। चलिए देखते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि x इक्वल्स टू 9m मत लिखो, 9q प्लस 0। एक केस हुआ, फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या होगा, x इक्वल्स टू 9q प्लस 2। थर्ड केस क्या होगा, x इक्वल्स टू 9q प्लस 3। फोर्थ केस क्या होगा, x इक्वल्स टू 9q प्लस 4। चलिए इतने में समझने की कोशिश करते हैं, इतने में आप लोग को समझ में आ जाएगा कि व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन। अगर नहीं आता तो फिर अपन चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, तो आप लोग लिख लिए होंगे उम्मीद करता हूँ।
चलिए देखिए. Okay, taking the very first case, if you will cube the case number 1, x cubed is equals to 9q cubed, 9q cubed. Now, if you will cube the 9, you will get 729q cubed. Now, if you will take a common of 9, if you will take the common of 9, you will get 981q cubed and 9m, where m is equals to what? 81q cubed. Okay. Now case number second. Case number second is this. So we will have the cube of both sides, that is 9q plus 2 whole cube. We will use the identity of a cubed plus a plus b का whole cube, that is a cubed 9q cubed plus 3a square, that is 9q square into b plus 3a b square plus b cubed. Now solve this, that you will get 729q cubed plus 3 into 9 9 is 81 q square into 2 plus 3 into 9 q plus 4 plus 8. Solve this, 729 q cubed plus 2 3 is 6, 6 1 is 6, 8 6 is 48 q square plus 4 3 is 12, 12 9 is 108 q plus 8. Now if you will take the common of 9, so you cannot common 9 from 8. So what you will do, taking common 9, then you will get 81 q is cubed plus, from taking common from this 9 5 ja 54 q square plus 12 q plus 8. Okay, so you cannot take the common 9 from 8 because 8 is not divisible by 9. Remaining numbers are divisible by 9. So taking 9 common, you will get what? 9 is equals to 81q cubed plus 51q square plus 12q plus 8. And you can write this like 9m plus 8, where m is equals to what? This 81q cubed plus 54q square plus 12q. Okay, so this is the second case. Now I am taking fourth case directly because 3 is a factor of 9 and the cube of 3 is also a multiple of 9. So I am not taking this because this will lead us to the case number first. So I am taking the case number 4 directly. ठीक है, चलिए देखते हैं case number 4. Now, making the cube of given number, x cubed is equals to 9q plus 4 cubed. Solving this, थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा बोरिंग लग रहा होगा कि सर इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं. अब मैं डायरेक्ट लिखना भी चाहूँ तो लिख सकता हूँ, पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. ठीक है, लिखेंगे भी अपन. a cube that is 9q cubed plus 3a square that is this and 3 ab square that is this and then 4 cubed. तो इसको अगर हम लिखें तो 729q cubed plus 4 3 जा 12, 1280 इसका स्क्वायर है बेटा है 12 12 1 जा 12, 12 8 जा 96 plus 1 97 q cubed plus q square plus 4 4 जा 16 9 3 जा 27 plus into 4, 27 into 4 that is 10, 27 into 16, तो 27 into 16 q plus 64. Now taking 9 as common, 9 कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा 81q cubed प्लस 9 कॉमन हो गया तो 4 3 जा 12, 12 9 जा 108, 108q प्लस यहाँ से 9 कॉमन गया तो 16 3 जा 48q प्लस 64, 64 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 63 plus 1.
बिकॉज 63 इज डिविजिबल बाय 9। तो हमने इसको जैसे उसमें 8 को हमने चेंज किया था ना, जैसे 4 को चेंज किया था 3 + 1 में, सेम इसको क्या किया 64 को 63 + 1 एंड 9m + 1, m की वैल्यू कितनी है, m इज इक्वल्स टू 81 क्यूब प्लस 108 क्यूब प्लस 48 क्यूब प्लस 63. Okay, so this is how you will complete your exercise 1.1. Please stay at home and be safe. For more videos, please like, share and subscribe our channel.